اس کے لمس پر فرشتے کا نازک وجود بھی جی جان سے لرزا تھا۔ جب سے وہ جھٹکے سے تمام فاصلے مٹائے اس کے بے حد قریب ہونے لگا۔ یزدان نے ہاتھ اس کے جوڑے میں لے جاتے جھٹکے سے اس کے گھنے آبشار کو بکھیرا، جو بکھرتے ہی سایہ سا کر گئے تھے۔ فرشتے کے لرزتے وجود کو دیکھتے یزدان نے کسی کانچ کی گڑیا کی مانند اسے اپنے بازو میں بھرا تھا۔ چلتے بیٹھ کے قریب ہوا تھا، یزدان کی نظریں اس سے ہٹنے کو انکاری تھی، جو آج اسے فرشتہ نہیں بلکہ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ اس کا دل یہ سوچ کر ہی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ اس کی پرنسس آج یوں اس کے لیے اپنا پور سجائے ہوئے تھی۔ یزدان، آپ نے مجھے معاف کیا؟ خود پر جھکے اس کے شاندار مرد کو دیکھتے وہ متفکر سی پوچھنے لگی تھی۔ یزدان نے شرط اتارتے دور چھالی تھی، ہاتھ اس کے بالوں میں لے جاتے وہ پھر سے اسے بھیگے ہونٹوں کے قابض ہو گیا تھا۔ اس کی مہکتی سانسوں کو خود میں انڈیلنے لگا تھا۔ معاف تو میں نے اسی وقت کر دیا تھا میری جان، جب تمہیں اس روپ میں دیکھا تھا۔ بس ایک چیز کا مجھے افسوس ہے، میری محبت میں ایک کمی ہے شاید، جبھی تم مجھ پر اعتبار نہ کر سکی، مگر آج تمہاری روح پر اپنی محبت کی بارش کرتے میں تمہیں اپنے جنون سے واقف کرواؤں گا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے وہ بھاری سرگوشی کرتے، اس کی نک کو ہونٹوں سے چومتے اتارتے ایک جانب کر گیا تھا۔ اس کی ناک کو چومتے یزدان نے ایک ایک کرتے اس کے جھمکے اور مانگ ٹیکا اتارا تھا۔ تم میری روح میں بستی ہو فرشتے یزدان، تم پر یار سنگھار نہ بھی کرتی، تم بھی میرے لیے بہت خاص تھی، مگر آج تم نے خود کو یوں میرے لیے سجا کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یزدان کی محبت بے مول نہیں ہے۔ اس کی گردن کے پور پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتا وہ فرشتے کو مچلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جب بھی فرشتے نے ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل کرتے اسے اپنے نزدیک کیا تھا، جو رفتہ رفتہ بڑھتی رات میں اس کے انگ انگ پر اپنی محبت کی بارش کرتے اسے نڈھال سا کر گیا تھا، جو اس کی شدتوں اور اس کے جنون سے کانپتے اپنا آپ اسی کے سپرد کر گئی تھی۔ کمرے کی خاموش ماحول میں سامنے بائیں جانب دیوار میں نصب کھڑکی کے جس کے پردے ایک جانب سرکے ہونے کی وجہ سے تیز سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑتے ہی اپنا بایاں ہاتھ اٹھائے وہ آنکھوں پر رکھ گیا تھا۔ یزدان نے سرخ آنکھوں سے گردن جھکائے اپنے سینے کی جانب دیکھا تھا، جہاں فرشتے اسی کی شرٹ میں اس کی شدت صحتی بکھری سی حالت میں پڑی تھی۔ فرشتے کا ایک ہاتھ یزدان کی گردن پر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کشادہ شرٹ لیس سینے پر تھا۔ سرخ چہرے پر اس کی محبت کے سارے رنگ یزدان کو مزید بے خود کرنے لگے تھے۔ دل ایک بار پھر سے جذبات کی آگ میں دہکنے لگا تھا۔ جب اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگائے فرشتے کے چہرے پر بکھرتے بالوں کو پیچھے کیا تھا، اس کے لمس پر وہ کسمساتے ہوئے منہ بنائے اس کے سینے میں گھسنے کی کوشش کرتی، وہ یزدان کرمانی کو پاگل کر دینے کے در پر تھی۔ جبھی وہ جھکتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لے جاتا اسے تکیے پر گرائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا، جسے اچانک سے ہوتی آفات پر بکھلائی سی تیز تیز دھڑکتی دھڑکنوں سے یزدان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں شریر سی چمک فرشتے کو اپنی نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ یزدان کرمانی نے اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے کے درمیان سے لکیر کھینچتے اس کے ناک سے ہوتے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکی تھی، تو فرشتے خشک ہوتی سانسوں سے سہمتے اسے دیکھنے لگی تھی، جس کی آنکھوں کی چمک اس کے چہرے پر پھیلا سکون فرشتے کے دل کو پرسکون کر گیا تھا، جبکہ یزدان اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر پاتے مسکراتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ یزدان نے آنکھیں مودے اس کی خوشبو کو خود میں اتارا تھا، جو نرمی سے اس کے ہونٹوں کو قید کیے فرشتے کی قربت میں اس کے لمس پر مدہوش ہونے لگا تھا۔ اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتے یزدان کرمانی نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے لب اس کی ٹھوڑی پر رکھے تو فرشتے کا چہرہ شرم و حیا سے لال ہونے لگا۔ یزدان، اس کی بڑھتی جسارتوں پر سہمتی اسے باز رکھنے لگی، جو مکمل طور پر اس کے وجود میں کھوتا جا رہا تھا۔ یزدان نے اس کی گردن پر شدت بھرا لمس چھوڑتے فرشتے کو دیکھا تھا۔ گڈ مارننگ جانے یزدان، فرشتے کی گردن سے باز سمیٹتے وہ محبت سے بولا تھا۔
जबकि फरिश्ते ने फौरन से इसके कंधों पर हाथ रखते इसे झंझोड़ डाला था। टाइम देखिए, मुझे छोड़िए, फ्रेश होना है, मामा क्या सोचेंगी। और टाइम देखते काफी परेशान सी हुई थी, जब इसे पीछे करते उठने लगी। मगर यजदान का फिल वक्त इसे यूं ही छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। खुद ही तो रात को दुल्हन बनी हुई थी, अब अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं, वो भी इतनी आसानी से। यजदान ने खींचते से अपने साथ लगाए इसके कान में सरगोशी की तो फरिश्ते की पलकें हिया से लरजने लगी थी। रात का एक एक पल यजदान की बेखुदी इसकी शिद्दतें याद करते ही वो कानों की लो तक सुर्ख पड़ने लगी थी, जबकि मुकाबल आराम से बैठा इसके चेहरे पर बिखरती शर्मो हिया को देखने लगा। आपने माफ कर दिया मुझे, इसके सीने से सर टिकाए वो आंखें मूंदे पूछने लगी, जिसे यकीन था कि वो माफ कर चुका होगा। थोड़ा माफ कर दिया, थोड़ा सा रह गया है। अगर तुम अभी भी एक बार फिर से रात की तरह राजी करोगी तो हो सकता है मान जाऊं। इसके कंधे पर होंठ रखते वो गंभीर लहजे में फरमाइश करने लगा था। फरिश्ते सुनते एकदम से इसके समझने से पहले इसे धक्का दिए बेड से उतरी थी। यजदान सीधा होते इसे देखने लगा था, इसके समझने से पहले बाथरूम में बंद हो चुकी थी। कब तक बचोगी, आना तो मेरे पास ही है, फिर देखता हूँ। बंद दरवाजे को देखता वो मुस्कुराता बड़बड़ाते हुए उठा था। एहराज आयत बेचैनी से इसे आवाजें देते रूम से निकली थी, जिसकी नींद की वजह से फोन उठाए नीचे आया था। अब इसका इरादा अपनी बीवी के लिए अच्छा सा खाना बनाने का था। एहराज के प्यार में वो वाकई बदल गई थी, या फिर वो एहसास होती जा रही थी। इसके लिए इसकी नजरों से ओझल होना ही आयत को संभा देता था। जब भी वो बेचैनी से इसे ढूंढने लगती थी, अब भी वैसा ही हुआ था। सुबह नमाज अदा करने के बाद अब दिन की 11 बजे उठी थी, मगर एहराज को अपने करीब ना पाते वो बेचैनी से तेज सीढ़ियां उतरती इसे ऊंची आवाज में पुकारने लगी थी। एहराज आंच धीमी किए किचन से निकला था कि अचानक से आयत का पांव तेजी से सीढ़ियों से उतरते फिसला था। एहराज की नजरों के सामने वो एकदम से ऊपरी सीढ़ियों से गिरी थी, जिसका सांस उलझ कर रह गया था और डर और वहशत से फ्रीज सा हो गया था। मगर फिर जाने कैसे इसमें हिम्मत आई थी कि वह दौड़ता सीढ़ियां चढ़ता ऊपर गया था। पाँव मुश्किल से इसे थामते एहराज ने से खुद में भीजते आयत के सर को देखा था, जहाँ से खून निकल रहा था। आयत, तुम ठीक हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? इसके चेहरे को थपथपाते वो मुतफक्कर सा बेचैनी से पूछने लगा था। आयत की दर्द से सिसकी नमूदार हुई थी। जब भी वो सिसकते इसके सीने से जा लगी थी, एहराज फौरन से अपनी बाहों में भरता बाहर की तरफ बढ़ा था। एहराज, मैं ठीक हूँ। इसके सीने से सर निकालते वो सहमी हुई रोने से सुर्ख हुई आंखों से इसे देखते बोली थी, जबकि वो बिना कुछ कहे झुकते इसे सीट पर बैठाए फ्रंट सीट पर आया। खामोश हो जाओ, इससे पहले कि मैं इस घर को आग लगा दूं कि अगर फिर से चलते होंठों पर अपनी भारी हाथ की उंगली रखते आंखों में गजब की सुर्खी लिए बोला तो आयत को इसके अंदाज पर अजीब सी वहशत हुई थी। वो खामोशी से सर झुका गई थी। सर से खून अभी तक बह रहा था, जबकि दर्द से इसकी आंखें बंद हो रही थी। एहराज ने टिश्यू निकालते इसके जख्म को इंतहाई नरमी से साफ किया था, जबकि आयत तो इसके चेहरे पर फैली परेशानी को शुमार कर रही थी। खून के बहने की शिद्दत कम होते हुए इसे हॉस्पिटल ले गया था। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, तुम्हारे पाँव में मोच आई है, जानता हो। खामोशी से मुझे उठाने दो, वरना तुम्हारे मुंह में अपने तरीके से बंद करूंगा। एहराज ने आज फिर इसे अपनी पुरानी टोन में समझाया था कि वो जैसे गाड़ी से निकलते अपनी जानब आता देखते ही खुद से उतरने लगी थी। एकदम से इसकी बात पर शर्मिंदा सी होती नजरें झुका गई थी। एहराज नरमी से बाजू में भरता हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। मामा, अपनी बेटी से कहिए मेरे कपड़े निकाल दे। वो जो रीलिंग से झांकते किचन की जानब रुख किए जोर से बोला था, और वो जो आगे ही फरिश्ते के निखरे हुए रूप और चेहरे पर फैले शर्मो या सुकून को देखती काफी पुरस्कून थी। यजदान की आवाज पर लब दांतों तले दबाए फरिश्ते को देखने लगी, जो काफी खफाजदा सी हुई थी। वो मामा, इनकी आदत होगी ना, इसलिए बुला रहे होंगे। रोज मैं ही कपड़े निकाल देती हूँ ना, मगर आज मैं पहले आ गई तो शायद इसीलिए बुला रहे हैं। हाँ बेटा, तुम जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें मना किया है। तुम जरूर जाओ, भले तुम्हारा शोहर है वो तुम्हें नहीं करोगी, इसके काम तो और कौन करेगा। चाय का पानी चढ़ाते वो मोहब्बत से इसके गाल को थपकते बोली। फरिश्ते इनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी थी।
वो सर हिलाते धीमे कदमों से ऊपर रूम की चानब बढ़ी थी। फरिश्ते ने गहरा सांस भरते दरवाजा खोला था, मगर मुकाबले इसके अंदर दाखिल होते ही खींचते इसे दीवार से पिन करते इसके समझने से पहले इसके होंठों को कैद कर दिया था। इस अचानक लम्स पर वो घबरा सी गई थी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगी मुझसे? खुद को सैराब करता हुआ इसके निचले होंठ को अंगूठे से सुलहाते बेबाकी से बोला था। फरिश्ते का चेहरा लाल पड़ने लगा था। वो नजरें झुका गई थी, जिसे देखते मुकाबल को इस पर टूट कर प्यार आया था। कपड़े निकाल दो यार, आज एक बेहद जरूरी मीटिंग है। मेरी यजदान ने अपने बेधड़क बजते मोबाइल को देखते झुकते इसके दोनों गालों को चूमते कहा था। मोबाइल उठाए वो बैल्कनी की जानब गया था, जबकि फरिश्ते मुस्कुराते इसके कपड़े निकालने लगी थी। थैंक्स मेरी जान, इसे पीछे से सार में लेते वो झुकते होंठ इसके गाल पर रखते शुक्रिया करने लगा था। फरिश्ते के चेहरे पर एक पुरस्कून सी मुस्कुराहट थी, जैसे अब वो मुतमईन हो गई थी अंदर से। मेरा नाश्ता रहने दो, बस कॉफी ले जाऊं ऊपर रूम में, मैं जब तक मैं चेंज करके आता हूँ। इसकी पेशानी को छूते वो झुकते बेड से कपड़े उठाए बोला था। फरिश्ते सर हिलाते नीचे आई थी। क्या ढूंढ रहे हैं आप, सब ठीक तो है ना? यजदान के चेहरे पर फैली बेचैनी और इज़्तिराब को देखते वो काफी एक जानब रखते इसके करीब आई थी, जो वार्डरोब से जाने क्या ढूंढ रहा था। शायद तुमने मेरी ब्लू कलर की फाइल देखी? कहीं भैया ने मुझे दी थी, मगर न जाने कहाँ रख दी मैंने। मैं हूँ लापरवाह, अभी न्यू स्टार्ट है ऑफिस में, न जाने वो क्या सोचेंगे। माथा मसलते वो फरिश्ते को देखते बेचैनी से पूछने लगा था। फरिश्ते को काफी परेशान लगा था। नहीं, मुझे तो नहीं पता इस फाइल के बारे में। मैं क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वह हैरतज़दा से देखती इस सवाल को होने लगी थी। यजदान की परेशानी देखकर वो खुद काफी परेशान सी हुई थी। यार, इस फाइल में मेरा सारा कैरियर है, आज की मीटिंग की अपडेट्स है, प्रेजेंटेशन है जो मैंने 2 हफ्तों से तैयार की है, वो सब कुछ इस फाइल में है, मगर अब वो नहीं मिल रही। फरिश्ते को देखते वो अपनी परेशानी से आगाह करने लगा, जो खुद भी काफी परेशान हो गई थी। तो अब क्या होगा यजदान? इसके कंधे पर हाथ रखते वो काफी डरी हुई पूछने लगी थी। मैं ऑफिस जाकर चेक करता हूँ, अगर घर से मिली तो प्लीज मुझे आगाह कर देना। वो काफी बेचैनी से इसे आगाह करता तेजी से कमरे से निकला था, जबकि फरिश्ते से जाता देख दिल से दुआगू हुई थी। आखिर बताइए तो सही, शहान हुआ क्या है? क्यों इस कदर परेशान है आप? रात के 10 बजे शहान करमानी साहब ऑफिस से थके हारे कदमों से घर वापस लौटे थे। आते साथ वो गुस्से से निटहलते समिया बेगम को देखते यजदान के खिलाफ शुरू हो चुके थे। फरिश्ते तो सुबह से यजदान के जाने के बाद परेशान थी। यजदान को कई बार कॉल की, मगर फोन ऑफ जा रहा था। मुझसे पूछे बगैर ही मेरी कंपनी के 70% शेयर्स को एक डील पर लगा चुका है। और जानती हो आज क्या हुआ है? सारी बोर्ड की मीटिंग में जब यजदान करमानी से वो प्रोजेक्ट मांगा गया तो जनाब खाली हाथ थे, कुछ नहीं दिया इसने बोर्ड को। और इसका वो अरेबल दीवान वो प्रोजेक्ट के साथ साथ अपने नालायक सपूत की वजह से हमारी कंपनी के 70% शेयर्स का मालिक बन गया। मतलब कि हमारी कंपनी का मालिक अब से वो दीवान बन चुका है। शहान साहब की बताई बात पर फरिश्ते और समिया बेगम दोनों ही सख्ते में चली गई थी। इनका दिमाग जैसे माफ हो गया था। फरिश्ते खुद दीवार के सहारे से खड़ी थी। आइए आइए लॉर्ड साहब, वेलकम मिस्टर यजदान करमानी। कैसा लग रहा है आपको कंगाल होकर? दरवाजे से बिखरी सी हालत में बेजान कदमों से अंदर दाखिल होते यजदान को देख वो गुस्से से दांत पीसते बोले थे। आज तक एहराज ने कभी इनका सर नहीं झुकने दिया था, और ये नालायक आते ही सब डुबो रहा था। यकीनन आपके लिए कौन सा कोई बड़ी बात है? कौन सा अपनी मेहनत की कमाई थी, बाप के खून पसीने की कमाई थी सारी, जिसने तुम्हें यूं चुटकियों में खाक कर दिया। वो गुस्से से गरजते काफी हाइपर हो रहे थे, जबकि यजदान खामोशी से किसी मुल्ज़म की तरह सर झुकाए खड़ा था। बस करें, तबीयत खराब हो गई है आपकी, चलिए मेरे साथ। इनके चेहरे पर पड़ते चेहरे और फूलते तनफ्फुस को देख वो दौड़ती इनके करीब हुई थी। मैं पूछता हूँ क्या कि एक बार भी तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? आखिरकार इतना बड़ा फैसला बाप को पता होना चाहिए था ना? यजदान के सामने खड़े होते इसे गुराते लहजे में बोला था, जबकि यजदान खुद ही परेशान सा खड़ा इनकी ही बात को सह रहा था। समिया इन्हें बामुश्किल से थामते अपने साथ ले गई थी। यजदान गुस्से से तेज तेज कदम उठाते ऊपर अपने कमरे की जाना बढ़ा था। फरिश्ते परेशानी से इसे देख रही थी, जो लंबे लंबे डग भरता इसके पास से गुजरता ऊपर चला गया था। आखिर कौन कर सकता है ये सब?
मेरी बनाई फाइल आखिर कैसे इस तक पहुंची? बैल्कोनी में खड़ा हुआ शर्टलेस सा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, मगर अंदर लगी आग किसी तौर पर कम नहीं हुई थी। सब कुछ पल भर में तबाह हुआ था। यजदान ने सिगरेट का गहरा कश लिया, सारा धुआं अपने अंदर अंडेलते और दिल में उठते दर्द को तस्कीन देने लगा। गहरी रात की तारीकी में आसमान पर छाई काली घटा की वजह से मौसम अबर आलूद हुआ था, जबकि वो हर एक चीज से बेगाना अपने अंदर के गुस्से इश्तिलाल को खत्म करने की कोशिश में दबसमा सिगरेट सुलगा चुका था। मैं अपने कंधे पर किसी के नरमो नाजुक हाथ के लम्स पर अचानक से अपनी सुर्ख नजरों से गर्दन घुमाई से देखने लगा, जो काफी परेशान सी सर्दी से ठठरती फरिश्ते के पीछे खड़ी थी। यजदान यहाँ इतनी सर्दी में क्यों खड़े हैं? प्लीज चलिए अंदर। इसके चेहरे पर रकम तकलीफ को देखते फरिश्ते का सांस उलझने लगा था। इतने वक्त में अच्छे से यजदान को समझ गई थी। वो बेचैनी से इसके बाजू को पकड़ते बोली तो यजदान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहा, जो फिलहाल इसके बस से बाहर था। शहान सर की कही ये बातें अब तक दिमाग में गूंज रही थी। खाना खा लें प्लीज। यजदान इसके गुस्से में वो थोड़ा बहुत डरी हुई थी, मगर कैसे इसे अकेला छोड़ देती जब इसके हर दुख दर्द का साथी था। फरिश्ते जाओ फौरन यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, प्लीज तुम खाना खाकर सोचो, मुझे अकेला छोड़ दो। इसके हाथ को झटकते हुए जबड़े भीजते रुख मोड़ते खड़ा हुआ तो फरिश्ते ने गहरा सांस भरते आसमान पर नजर दौड़ाई, जहाँ से बारिश होने का इम्कान वाज़िह था। आप जानते हैं यजदान, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। प्लीज जिद मत करें, देखिए मौसम खराब हो रहा है, प्लीज चलिए अंदर चलते हैं। इसके भारी हाथ को थामते वो आजिज़ से आते बोली थी। यजदान ने सुर्ख होती आंखों से फरिश्ते को देखा। झटके से खींचते से करीब तर करते फरिश्ते इसकी होंठों पर झुकता, इसकी सांसों को खुशबू को अपनी दहकती सांसों के साथ सिगरेटों की मिली खुशबू को अंडेलता बेखुदी से अपने भारी हाथ इसकी कमर के गिर्द हायल किए इसे सीने में भीज गया था। रफ्ता रफ्ता यजदान की बढ़ती तशनगी फरिश्ते की जान लबों तक लाई थी। जब भी वो यजदान की गर्दन के गिर्द बाजू लपेटते खुद को इस जालिम के रहमो करम पर छोड़ गई थी, जो इसकी कुर्बत में अपना हर गम हर परेशानी भुला चुका था। आसमान से बरसती बारिश इन दोनों को चुंका गई थी। दुनिया से बेगाना एक दूसरे की कुर्बत में मदहोश से थे। फरिश्ते ने झटके से अपना आप इसकी गिरफ्त से आजाद कराया। अपनी बेखुदी में वो कई जान से शर्मिंदा अंदर भागने लगी थी। यजदान करमानी ने से के संभलने से पहले हाथ इसके पेट के गिर्द हायल किए फरिश्ते को खींचते खुद से लगाया था। आसमान से बरसती तेज बारिश ने यजदान के जज्बातों को मजीद भड़काया था। वो बेखुदी में इसकी गर्दन से गीले बालों को समेटते अपने लब रखते से खुद मजीद करीब तर कर गया था। गुजरते एक एक लम्हे पर यजदान की शिद्दतें इसे नढाल करने लगी थी। बस खुद पर साया बने जालिम शख्स की अपनी सांसों में घुलती खुशबू को महसूस कर रही थी। तुमसे कहा था कि मेरा काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। वो गुस्से से फोन को मुट्ठी में दबोचते गुरा उठा था। दूसरी जानब से माफी मांगी जा रही थी कि काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस शहान करमानी इसके बेटों की हार देखनी है मैंने। तुमने कहा था कि बहुत जल्द इसे बेआसरा कर दोगे, मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसके सर पर छत मौजूद है, इसके अपने इसके साथ है। मुझे इन सब को झुका देखना है। अगर इसी हफ्ते काम ना हुआ तो भूल जाओ कि ट्रैकर तुम्हारे किसी काम आएगा। इसने गुस्से से कहते साथ ही फोन काटा था। इसका बस नहीं था कि वो आग लगाकर राख कर देता शहान विल्ला को। ट्रैकर ने गुस्से से पास पड़े टेबल को लात मारते अपनी तक हुई नाकामी पर चीखते अपने बालों को दबोचता बेबस हुआ था। डॉक्टर आप ध्यान से चेक करें, कहीं कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई मेरी बीवी को। वो परेशानी से डॉक्टर को देखते बोला था, जो आयत के पाँव का बगौर मायना करते हुए अब एहराज को देख रही थी, जो कब से खड़ा डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहा था। मिस्टर आप रिलैक्स रहें, आपकी मिसेज बिल्कुल ठीक है, बस इनके पाँव में मोच आई है। मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, थोड़ी देर तक एहतियात कीजिएगा, अब वो बेहतर है। आयत के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते डॉक्टर मुस्कुराते बोली तो हिरास ने गहरा सांस भरते सर हाँ में हिलाया था। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर की जानब देखते हिरास ने मुस्कुराते हुए कहा था। इस पर डॉक्टर पेशरवाना अंदाज में मुस्कुराती वहां से निकल गई थी। अब कैसा फील हो रहा है, दर्द तो नहीं ना कहीं? इसके करीब बेड पर बैठते हिरास ने इसके चेहरे को हाथों में भरते पूछा था। आयत ने मुस्कुराते सर नफी में हिलाया था। एहराज ने झुकते इसकी पेशानी पर बोसा दिया था।
डोंट वरी, मैं अपनी जान को खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। एहराज ने शिद्दत से इसकी गालों को चूमते इसकी आंखों पर बोसा दिया तो आयत ने आंखें मूंदते सुकून अपने अंदर उतारा था। हैरी, मैं ठीक हूँ अब, रिजवान के हाथ पर हाथ रखते आयत ने तसल्ली देते लहजे में नरमी से कहा था। वो सुनता सर हिलाता इसे खुद में भीज गया था। इसके साथ पुरस्कून सी वो खुद भी आंखें मूंद गई थी। तुम वेट करो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, फिर हम चलते हैं। आयत के सर पर होंठ रखते वो कहते साथ बाहर निकल गया था, जबकि वो इसके जाने के बाद इसी का सोचते मुस्कुरा उठी थी। कितना अपनापन, कितनी मोहब्बत झलकती है एहराज के हर अंदाज से। अपने आप पर पैदा होता खुला आज तक वो भरता महसूस हुआ था। वो गहरी सोच सोचते इसके न आने पर खुद सी बेकरार सी कुछ मिनटों के बाद बाहर निकली थी। आयत ने नजरें घुमाए से ढूंढा, जैसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। बेचैनी से मुंह बनाए आगे पीछे देखकर लब कुचलने लगी थी। अचानक से इसकी नजर सामने मौजूद दरवाजे से निकलते इन लड़कों को देख आयत का चेहरा जद पड़ने लगा था। आगे ही एक पांव पर बोझ डाले खड़ी थी, मगर अब इसका वजूद बुरी तरह कपकपाने लगा था। अपनी जान बढ़ते इन कदमों को देख से पूरी शिद्दत से मरी की वो स्याह रात याद आई थी। आयत की इस रात का हर पल याद आने लगा। वो बेचैनी से धड़कते दिल से घबराते रुख मोड़ते दौड़ने लगी थी। पाँव में होती तकलीफ को नजरअंदाज किए वो बस इनकी नजरों से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। उनका सामना नहीं कर सकती थी, वो कमजोर भी थी। पाँव में दर्द होने की वजह से आयत का चेहरा आंसू से तर होने लगा था। वो अंधाधुंध भाग रही थी कि अचानक से वो बुरी तरह किसी से टकराते गिरने लगी। मुकाबल जो इसे यूं भागता देख इसके पीछे लपका था। एहराज ने इसे खींचते खुद में भीजा था। आयत, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? इसके सर को थपकते एहराज ने बेचैनी से पूछा था, जबकि इसके सार में इसकी आवाज को सुनते आयत को यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने इसे तेज धूप से निकालते छांव में ला खड़ा किया हो, जहां इसके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई न था। इसके मुहाफिज था इसके साथ। हैरी, वो इन लड़कों को देखते मैंने, हैरी, वो मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे इस रात। वो सब यहाँ है। हैरी, बहुत कमजोर हूँ मैं, प्लीज मुझे छुपा दो, मेरा दम घुट रहा है, मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे कहीं दूर ले जाओ, प्लीज। इसके सीने से लगी वो डरते इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ते सहमी हुई आवाज में बोली थी। इसके खौफ को महसूस करते एहराज ने नरमी से इसके बालों में हाथ चलाते से पुरस्कून करना चाहा था। आयत के खौफ से वो बाखूबी वाकिफ था। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मेरे होते हुए तुम एहराज करमानी की इज्जत हो, मेरा मान, मेरा गुरूर। तुम जाने एहराज हो, मेरी जान। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसकी गिरफ्त में मौजूद शिद्दत से हुई थी। इसके लफ्जों में धरी वहशत पर आयत खुद भी परेशान सी होते रह गई थी। घर चली, जहाँ मेरी आयत को कोई भी जवाब नहीं देना पड़ेगा और हर किस्म के सवाल जवाब से आजाद हो, जहाँ हमारी मोहब्बत का एक छोटा सा आशियाना हो। अपने लफ्जों में सुकून परोए वो इसके रूह को पुरस्कून करते झुकते अपनी गोद में भर गया था, जबकि वो खामोशी से इसकी गोद में सुकून से आंखें मुदे सर इसके सीने से